are staying safe, taking all the necessary precautions that need to be in this time of pandemic. And as you all know that today is Gandhi Jayanti, so happy Gandhi Jayanti to all of you. And just before I go ahead with the course, a quick recap for what we did last week or in the last live session that we had. It was on verbs and adverbs. And for all of you who would have missed the session on verbs and adverbs, a separate email containing the recording of the lecture has been mailed to you, and I hope you all would have received it by now. And I also presume that you are making the best use of the available resources in the training module. तो अभी मैं थोड़ा सा सेशन को थोड़ा सा लाइट करता हूँ सिंपली, सो दैट कि सबको समझ में आ रहा हो, नॉट जस्ट कि क्योंकि सिंपली कन्वर्सेशन सिंगल उसमें नहीं रहेगा, इट विल बी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. All right, I just got a response. Someone is asking for an email ID. Surely you will be sent an email ID. Okay, we will send you the email ID, all right? So we will start with the session. Last time हमारा verbs and adverbs हुआ था. So verbs का तो जैसा मैंने बताया था, it's verbs are action words. कोई भी action होता है तो उसके लिए verbs होते हैं use. Adverbs वो verbs होते हैं जो basically किसी भी verb action को amplify करते हैं या और detailing provide करते हैं. Okay, so अभी हम थोड़ा सा start करते हैं, जो कि there are 8 essential parts of speeches, all right? तो उनमें से we have covered 5 till now, all right? We have covered 5 till now. The remaining 3, which are prepositions, या जिनको बहुत fondly बोलते हैं, the 3 ions, prepositions, again an ion in the end, conjunctions, again an ion in the end, and interjection, again an ion in the end. These 3 remaining parts of speeches complete the 8 parts of speeches on which the complete English grammar is built. जो 8 parts of speeches हैं, alright, वो email, don't worry about the email, अभी आपको मिल जाएगा. Okay, we'll write it down. आपका पूरा नाम लिख लेते हैं. We'll send you. Someone is asking for an email ID. आप मॉड्यूल में जाके you can search for it, or just hold on, I'm just भेज रहा हूँ. All of you who are asking for the email address will be sent by the end of the session. So we'll start with the session. This time around the session is on prepositions. So अभी हम अगर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको preposition से simply preposition से क्या समझ में आ रहा है,
preposition means something that is put before the position of something. Preposition मतलब किसी पोजीशन के पहले पुट अप हो रहा है। तो ये प्रीपोजिशन का बेसिकली काम है क्या, प्रीपोजिशन करते क्या है, प्रीपोजिशन का रोल क्या है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, उसको जरा भी यहाँ पर देखते हैं। Prepositions are words that express a relationship between a noun or pronoun, जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, मतलब कि प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट होगा इन कंसर्न उसके पहले जस्ट पुट अप करते हैं। तो वही बात आती है, द प्रीपोजिशन फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड kept before a noun or a pronoun or another part of a sentence. ये छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली नाउन्स के जस्ट पहले आते हैं, जस्ट बिफोर द नाउन दे कम, राइट। और जब इनको हम एक कंबाइन करते हैं टुगेदर तो दे फॉर्म अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। दे कैन वर्क as an adjective or as adverbs in the sentence. कुछ एग्जाम्पल उसका मैं पुट अप करता हूँ, जैसे कि something is kept on the table, on the table, ठीक है, टेबल तो नाउन हो गया यहाँ पर, on the table पे कुछ रखा है, something is kept on the table. in the shed, जैसे कि कोई शेड है, उस शेड में कुछ रखा है, something is kept in the shed. And across the field, जैसे हम बोलते हैं ना कि I ran across the field, तो across is a preposition, in is a preposition, on is a preposition. Basically prepositions उसको define कर रहे होते हैं एक prepositional phrase के form में। तो इससे होता क्या ना कि when we use it in our grammar context, the essence becomes much clearer and our उसमें थोड़ा weight आ जाता है। Whatever we say or do, it adds weight to that thing. मतलब we are in, it shows that you are in command of that particular thing or action, that you are very well versed with the grammar usage. आपको उसका कंट्रोल अच्छा है, वो बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, आपको अच्छा कंट्रोल है उसका, अच्छी समझ है उसकी। जैसे कि एक अभी यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये एग्जांपल्स आप देख रहे हो, द पैकेज अंडर द ट्री। अभी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्री है ना, ट्री के अंडर, पैकेज अंडर द ट्री, द पैकेज बिहाइंड द ट्री, द पैकेज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि अंडर द ट्री, बिहाइंड द ट्री, इन फ्रंट ऑफ द ट्री इज माइन। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो गया, माइन, मी, मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, पैकेज ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज इस तरीके से होता है जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब प्रेपोजिशंस बहुत सारे से होते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रूल्स फॉर प्रेपोजिशंस, कि प्रेपोजिशंस को यूज कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स स्पेसिफिक, एंड उन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो the essence, the meaning of the sentence that we are making will be much clear and very easy to understand. सबसे पहला रूल क्या होता है कि प्रेपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑलराइट। जैसे कि as example, as they are in the kitchen, ऑब्जेक्ट क्या है, किचन, as they are in the kitchen, तो in जो आपका प्रपोजिशन है, as they are in the kitchen, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, किचन आपका ऑब्जेक्ट होगा, they are in the kitchen, they could be anyone else, वो सब्जेक्ट होगा, तो जो भी होगा, they are in the kitchen। यहाँ पर हम कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बोले एप्पल्स, where are the apples, where are the apples we bought in the morning, okay, तो we will say they are in the kitchen, they are in the kitchen। तो they यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया और in the kitchen हमारा in में in preposition हो गया और the kitchen हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
सेकंड पॉइंट होता हमारा कि preposition is always placed before something. वो something an object हो सकता है, जैसे कि as I put it in the box, as I put it in the box. ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बॉक्स है. as I put it in the box, मैंने उसको बॉक्स में रखा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. फिर क्या होता है? थर्ड रूल कि कोई प्रोनाउन है जो कि प्रपोजिशन को फॉलो कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए. ऑलराइट, जैसे कि as Mary gave a gift to him, as Mary gave a gift to him. तो जो him है ये आपका प्रोनाउन है और यही यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है कि मैरी gave a gift to him. to आपका प्रपोजिशन में आ गया, मैरी gave a gift to him, ये आपका him प्रोनाउन हो गया. तो जो यहाँ पर क्या है कि प्रोनाउन मस्ट बी इन दी ऑब्जेक्ट फॉर्म, वो वहां पे कंट्रोलिंग में होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? हिम, वो है प्रोनाउन. फोर्थ पॉइंट कि बिकॉज prepositions have no particular form, there can be one word prepositions, as example as before, into, on. राइट, जैसे कि वन वर्ड प्रपोजिशंस भी होते हैं जहां पे मैं इसको बोल रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता. देयर कैन बी वन वर्ड प्रपोजिशन आल्सो, बिफोर, इनटू, ऑन. फिर उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस होते हैं आपके. ये क्या होते हैं? एज वेल एज. इनका टाइप क्या होता है? एज वेल एज, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ. फॉर एग्जांपल इफ आई से why is there there is a holiday today, or if we were to explain to somebody that today the office is off on account of Gandhi Jayanti, we will not because of Gandhi Jayanti. Because of Gandhi Jayanti is no reason at all. Okay, that is why we say on account of. उसके उस कारण से, उस रीजन से एक प्रॉपर एक अकाउंट है. मतलब उस दिन एक गांधी जयंती इज द डे वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी. तो उनकी जयंती पर छुट्टी है. तो ऑन अकाउंट ऑफ गांधी जयंती, द ऑफिस इज ऑफ टुडे ऑन अकाउंट ऑफ गांधी जयंती. इसको अगर हिंदी में मेरे को बोलना हो तो मैं बोलूंगा कि गांधी जयंती की वजह से आज ऑफिस बंद है. तो ये कोई ऐसा नहीं बोलेंगे, उसको डेरोगेटरी या नेगेटिव रीजन नहीं बोलेंगे. यहाँ पर एक एक्सप्लेनेटरी रीजन है यहाँ पर, टू ऑब्जर्व समथिंग ऑन अकाउंट ऑफ गांधी जयंती दी ऑफिस इज ऑफ टुडे. फिर आपके पास आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, विच इज preposition is followed by a noun. preposition जो है उसके इमीडिएटली बाद में एक नाउन आता है, उसके पहले कभी भी वर्ब नहीं ही आता. जैसे एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे ये सेंटेंस को अगर आप देखें, एज द फॉक्स जम्प्ड ओवर द वॉल. तो ओवर द में आपका ये ओवर हो गया प्रपोजिशन. द वॉल आपकी जो ये वॉल है, ये वॉल आपका नाउन हो गया. तो ये भी एक रूल है कि preposition should always be followed by a noun only. ठीक है ना, उसमें वर्ब नहीं आ सकता. इसके अभी और भी एग्जांपल्स होंगे which we will look into as we go forward in the session. अभी हम आगे चलते हैं. Types of prepositions. हमने यहाँ पर अभी we have already discussed somewhat. Without even telling you that we were doing these types of preposition in the earlier section. So there are three types of prepositions, which is first one is preposition of time, preposition of place, जो होता है ना where did this happen, where did that happen, and preposition of movements, वो भी where words में ही होते हैं. कैसे यूज होता है इनको हम आगे देखेंगे.
prepositions of time. Prepositions of time which show time, मतलब अगर मैं यहाँ पर मैंने आपको prepositions of time में वो time show करते हैं, या फिर जब something happens, a time when something happens, जब कुछ हो रहा होता है उनको prepositions of time बोलते हैं। कुछ छोटे एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, at, in and on. These are usually used as prepositions of time. जैसे इस एग्जाम्पल के लिए भी मैं आगे चलूंगा, जैसे बोले कि जस्ट इन टाइम, बिल्कुल बिल्कुल समय पर आया, आई केम इन जस्ट इन टाइम। ओके, तो इस तरीके से आपके prepositions of time होते हैं। इनके एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे तो सेशन चलता रहेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैंने आपको 3 बताए थे, देखिएगा बैक स्लाइड में आता हूँ फिर से। prepositions of time की मैं जब बात कर रहा था तो यहाँ पर था at, in and on। अब at, in and on का यूज कैसे होता है उसको एक बार जरा देखते हैं तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे कि at का यूज करना है तो at का यूज कैसे टाइम के लिए हम करेंगे, टाइम ऑफ द डे। जैसे कि at 4 o'clock you are requested to report at the office at 4 o'clock। तो यहाँ पर हमारा preposition of time है at, मतलब कि 4 बजे आपको पहुंचना है। The class will start at 10:30 और the program, the TV serial will start at 10:30 PM। वो 10:30 पे शुरू होगा। ओके, तो ये आपका preposition of time है at। और when do you have your lunch? At noon, मतलब दोपहर में, दोपहर पे, तो ये आपका at noon हो गया। दूसरा देखते हैं meal times होता है ना, at lunch time, when are you going to meet him? At lunch time, when are you going at party, when are you going to talk to him? If I ask that when are you going to talk to him? Oh, I will talk to him at dinner time। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैं उससे डिनर पे बात करूंगा। तो preposition of time यहाँ पर कैसे होगा, at आ गया ना, at dinner time, जैसे हम बोलते हैं at dinner time I'll have my medicine at dinner time और I'll have my medicine at lunch time। हॉलीडेज की अगर बात करते हैं तो क्या होता है at Christmas या at weekend। एक्सप्रेशंस में अगर हम बात करते हैं तो at present, what are we doing at present। so तो क्या बोलेंगे हम, what are we doing at present, हम अभी क्या कर रहे हैं। तो at present we are sitting in a class, at present we are sitting in an online class, at present we are taking an online class। या फिर what are you doing at the moment, at the moment मतलब अभी मौके पर आप क्या कर रहे हो। तो I'm taking an online class at the moment। और at night, when are you going to mail me, मुझे मेल कब भेजोगे आप। तो क्या बोलेंगे हम, I will send in mail at night, मैं रात पे भेजूंगा, रात में भेजूंगा। तो इस तरीके से आपके यूज ऑफ at को, जो preposition at है और जो टाइम होता है वो उसका इस तरीके से यूज करते हैं। दूसरे कौन से prepositions हैं, जैसे यूज ऑफ in, जैसे अगर हम बात करें तो इन जनवरी में, या फिर ईयर्स की बात करते हैं हम तो इन 1992 when did the team win the world cup, they won the world cup in the year 1992। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑब्जेक्ट भी हो गया, वो ईयर का नाम वो ऑब्जेक्ट होगा in 1992। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, preposition of time यहाँ पर आपका in, जो कि ईयर को सिंबलाइज कर रहा है वहां पर आ गया। या फिर सीजन में हम बात करते हैं, जैसे कि there are few fruits which are available only in the winters or only in the summers। तो फिर वहां पर कैसे होता है, in winter और in summer। जैसे कि होता ना, kids love eating ice cream in the summer, they enjoy playing in water in summers। तो आपका यूज ऑफ इन, जो preposition in है ये टाइम वाला है, ये आपका इस तरीके से यूज होता है। या फिर हम डेकेड्स की बात करते हैं, एक बड़ा टाइम ब्रैकेट,
in the 90s. We used to be a great, a very competitive team in the 90s, or rather in the 1990s. फिर बड़ी सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, जब बहुत और बड़ा आता है सदी में, मतलब लार्जर पिक्चर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां पर क्या रहा कि वी वर रूल्ड बाय अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और अ पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स इन द 20th सेंचुरी. और फिर उसके बाद आता लॉन्ग पीरियड्स की जब हम बात करते हैं, तो इन जैसे अभी कोई पूछता है अभी आपसे, समबडी इन द ग्रुप दैट ओके व्हाट वर यू इनटू इन द पास्ट, या आप पास्ट में क्या करते थे. जैसे मेरे से अगर आई फील समवन आस्क मी कि अभी तो यू आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास, व्हाट डिड यू डू और व्हाट वर यू डूइंग इन द पास्ट. तो मतलब पास्ट का मतलब यहाँ पे बड़ा पीरियड होगा मेरी लाइफ का जो कि काफी पीछे है, मैं उस पर क्या करता था. तो आई वाज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर विद some of the financial banks in India, and I used to train a lot of insurance agents in their communication skills. तो वो periods हो गया कि when I was doing that पीछे हो गया, but now I'm taking the online classes. I'm doing all the things online because अभी आपको पता ही है क्या चल रहा, बाहर सिनेरियो क्या चल रहा. People are more into the online classes rather than the physical classes itself because it gives them the flexibility of time and place to take their classes. So in the past I used to, ऐसे बोलते ना, in the past I used to run a school, in the past I was associated with a company. तो वहां पर क्या लॉन्ग पीरियड्स की बात हो गई कि in the past में क्या करता था. या फिर पार्ट्स ऑफ द डे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूज ऑफ इन में, तो इन द मॉर्निंग व्हेन डू यू हैव अ कप ऑफ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर क्या होगा इन द मॉर्निंग में, आपका मॉर्निंग आपका ऑब्जेक्ट होगा. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग. टाइम सिंबलाइज करना ना कि इन द मॉर्निंग, या फिर इन द इवनिंग, इन आफ्टरनून, एट नाइट. तो इस तरीके से आपका यूज ऑफ इन होता है जो टाइम को सिंबलाइज करता है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम का, जो इस तरीके से यूज होता है आपको. भी आगे चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या प्रपोजिशंस के होते हैं कॉन्सेप्ट्स. एट इन हो गया. अब ऑन की बात करते हैं. ऑन क्या मतलब कि किस पर्टिकुलर डे पे कोई चीज फॉल करती है. व्हेन इज योर बर्थडे, या फिर बोलें कि व्हेन आई वी गोइंग टू गेट अ प्रोजेक्ट, या ये काम कब होना है. तो ऑन, जैसे कि किसी की एनिवर्सरी के लिए आप पूछने आ रहे हो कि उनकी एनिवर्सरी कब फॉल करती है, व्हेन उनकी एनिवर्सरी कब फॉल करती है. तो ऑन 8th of June they have their anniversary or marriage anniversary or you know birth anniversary on 8th of June. ठीक है. सिमिलर तरीके से जब डेज की बात हम करते हैं तो वहां पर आपका ऑन मंडे द स्कूल इज क्लोज्ड. ऑन मंडे, स्कूल मंडे को बंद है. देयर विल बी अ स्मॉल सेलिब्रेशन ऑन क्रिसमस डे, या फिर पार्ट स्पेसिफिक डेज की हम बात करते हैं तो ऑन मंडे मॉर्निंग या ऑन संडे इवनिंग. यहां पर आप भी नोटिस करना कि यहां पर ऑन है, इन नहीं है. ये कुछ एरर्स होते हैं, इसीलिए इनको रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई डे या इस तरह की चीजों की बात करते हैं तो वहां पर इट इज ऑलवेज ऑन, इन नहीं होता. कि इन तो मतलब हो गया कि इनसाइड, बट यहाँ पर हमारा जब डेज की हम बात करते हैं तो वहां पर या डेज एंड डेट्स या पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डेज की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज द प्रीपोजिशन यूज हियर इज ऑलवेज ऑन. ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, या फिर ऑन मंडे मॉर्निंग. वी नेवर से दैट कि इन मंडे मॉर्निंग वी विल बी गोइंग आउट फॉर पिकनिक. इट इज ऑलवेज ऑन कि मंडे मॉर्निंग पे, इनसाइड इन होता है, मंडे मॉर्निंग को हम जाएंगे, वहां पर ऑन मंडे मॉर्निंग होता है. ओके, अभी अगर मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है तो प्लीज मैसेज इन बॉक्स में मैसेज कर दीजिए प्लीज. जस्ट कीन अ मैसेज दैट माय वॉइस इज
clearly audible to you all? Okay, moving ahead. अब यहाँ पर कुछ अदर prepositions of time आते हैं जहां पर हम बात करते हैं, जैसे कि during हो गया. During is also preposition. During, when something happens within the time something else is happening, मतलब जब कोई चीज हो रही है और एट द सेम टाइम कोई और घटनाक्रम चल रहा है. जैसे कि he was using his mobile phone during the class, मतलब वो, मतलब यहाँ पे प्रोनाउन है ना, he is a pronoun, ठीक है, रिप्लेसिंग a noun. तो he was using, वो अपना मोबाइल फोन क्लास के दौरान, मतलब कि क्लास चल रही थी, क्लास वाज गोइंग ऑन, वो अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा था, क्लास के बीच में यूज कर रहा था, है ना. तो मतलब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर. पहला तो क्लास चल रही है, दूसरा एक्शन क्या हो रहा है कि वो मोबाइल से भी कुछ कर रहा था. या फिर इसको अगर हम बोले कि he was yawning during the meeting, मतलब कि मीटिंग चल रही थी, वो एक एक्शन है, उसी के बीच में वो yawning भी कर रहा था, क्योंकि yawning वो भी एक एक्शन है. लेकिन क्या हुआ, yawning और मीटिंग दोनों एक टाइम पे चल रहे हैं, तो ड्यूरिंग वहां पे यूज होगा क्योंकि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है. तो he was yawning during the meeting. और फिर यहाँ पर आता है for. For का कैसे यूज करते हैं? For used with a period of time. Example, as I was sleeping for 2 hours, है ना. I was sleeping for 2 hours. मैं 2 घंटे के लिए सो गया था. मैं 2 घंटे के लिए सो रहा था. ठीक है. फिर आता है since. Since refers back to a point in time when something began. Okay. Example के लिए, as many years have passed away since we met, मतलब कि काफी साल हो चुके हैं हम लोगों को मिले हुए. Since we met मतलब कि पहले, some point back in time where we met. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, as many years have passed, मतलब हमें मिले हुए बहुत साल हो चुके हैं. हमें मिले हुए बहुत साल हो चुके हैं. फिर आता है until and till, symbolizing up to a certain time. Up to a certain time मतलब कि उतने टाइम तक. इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. As they waited till 6 for you, मतलब टाइम क्या है, till. They waited till 6 for you, मतलब वो 6 बजे तक आपका वेट किया. उन लोगों ने आपका वेट 6 बजे तक किया. They waited till 6 for you, after which they left. By another point, preposition of time है by, यानी कि not later than, मतलब कि later than, उसके बाद नहीं. जैसे कि अभी जो फॉर एग्जाम्पल, whenever we move out or go out of our home for some reason, obviously because of the pandemic we are not moving out, partial lockdown, and there are as it is said that do not move out of the house unless it's very urgent for you to move out. So if nonetheless, if we move out of the house, first question that our parents ask, or somebody who cares for us asks, is that when will you be back? So the immediate response will be, I will be back by 4 p.m. or I will be back by 2 p.m. मतलब क्या हुआ, मैंने एक टाइम डेफिनेशन पुट अप करी कि मैं 4 बजे तक या फिर मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा. मैं 2 बजे तक आऊंगा, मतलब कि 2 बजे मेरा थ्रेशोल्ड टाइम है. I will not come beyond that time. I will try to reach home before that time, well in advance. Okay.
अभी एक और फिर from or to. This is used to show when something begins and ends. For example, he is on leave from Monday to Saturday. From and to का यूज देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है. He is on leave from मतलब स्टार्टिंग Monday to Saturday means Monday से लेके Saturday तक he will be on leave for some reasons, illness, or maybe he is on holiday. He has taken an official holiday for which he will be on leave from Monday to Saturday. तो इस तरीके से आपके preposition of time का भी यूज कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट देखते हैं preposition of place. Prepositions which are used to show place where something happens. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कोई एक्टिविटी हो रही है, जगह, उसको बोलते हैं prepositions of place. They are used to show the position or location of one thing with another. मतलब वो किसी भी पर्टिकुलर चीज की जगह और लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बताते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन वेयर मतलब कहां. जैसे भी मैंने बोला था ना आपको इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द सेशन दैट हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत कुछ पहले ही समझ लिया, बट उनको हम डिफाइन अप कर रहे हैं जैसे जैसे सेशन बढ़ता जा रहा है. तो जो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है इसमें कि इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, between, across, under, after, before, etc. ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चंस वेयर जो कर रहे हैं, ये प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं. preposition of place कैसे काम करता है. जैसे इन फ्रंट ऑफ, अभी यहाँ पर अभी पीछे एक सेकंड के लिए बैक में आते हैं. यहाँ पर कैसे यहाँ पर preposition of place को यूज करेंगे, ठीक है ना. देखिए इन फ्रंट ऑफ, अ बैंड प्लेज देयर म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस मतलब अपन ऑडियंस के सामने. मतलब वो यहाँ पर वेयर जो है क्वेश्चन कि कहाँ, वो क्या हो रहा है. बैंड प्लेज देयर म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने. द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर जो है स्टूडेंट्स के सामने. द मैन स्टैंडिंग इन द लाइन in front of me smells bad. मतलब वो मेरे जस्ट सामने जो खड़ा उसकी स्मेल बैड है. Teenager normally squeezes it in front of the mirror. मतलब in front of the mirror मतलब मिरर के सामने. I am working in front of a laptop. मैं लैपटॉप के सामने काम कर रहा हूँ. In front of a computer, alright. फिर आता है behind जो डिस्क्राइब करता है preposition of place को. Behind generally इन फ्रंट ऑफ का एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट है. इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड. व्हेन द टीचर राइट्स ऑन द व्हाइट बोर्ड द स्टूडेंट्स आर बिहाइंड हिम और हर. अगर मैं बोर्ड में कुछ लिख रहा हूं तो स्टूडेंट्स आर बिहाइंड मी, ठीक है ना. हु इज दैट पर्सन बिहाइंड द मास्क मतलब वो पर्सन कौन है जो उस मास्क के पीछे है. I slowed down because there was a police car behind me. मतलब मेरे पीछे कोई पुलिस कार चेज कर रही होगी या फॉलो कर रही होगी. तो I slowed down because there was a police car behind me. मेरे पीछे थी. Between. Between normally refers to something in the two objects or things. There are mountains between Chile and Argentina. Between मतलब चिली और अर्जेंटीना के बीच में माउंटेन है. The number 5 is between the number 4 and 6 मतलब 4 and 6 के बीच में नंबर 5 आता है. There is a sea, the English Channel, between England and France मतलब इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में the English Channel है. Between that ये प्लेस बता रहा है कि वहां पर क्या है. एक छोटा सा लिस्टिंग ऑफ कॉमन प्रीपोजिशन जैसे कि अबोर्ड,
among, about, around, above, as, across, at, after, before, against, behind, instead, on, so on so forth, into, out, like, out of. ये कुछ कॉमन प्रपोजिशन है जो डे टू डे अपने लाइफ में यूज करते हैं. बाकी जो हम लोगों ने अभी यूज किया वो अभी आपने यहाँ पर देखा. मैं फिर से मैं हर सेशन में रिपीट किया करता हूँ कि आफ्टर एवरी सेशन काइंडली गो बैक टू द मॉड्यूल एंड do the practice exercise on the day itself. Okay, it will help you understand the concepts in depth. Okay, and one more thing, after every session you will also get a practice exercise on the topic which was done on that particular day. जैसे भी आज हम prepositions, conjunctions और interjections कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस आपके इनबॉक्स में मेल पे मिल जाएगी फॉर ऑल दोस हु हैव रजिस्टर्ड. वहां पर जाकर के आप लोग अपना एक प्रैक्टिस के लिए पुट अप कर सकते हैं अच्छे से. ठीक है, सेम थिंग. अब बात आती कंजंक्शन का. क्या है कि कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, phrases or clauses expressing a specific kind of relationship between two or more elements. मतलब वो वर्ड्स जो कि सिंगल वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस होते हैं, उनको किसी रिलेशनशिप कुछ होती है तो उनको कनेक्ट करते हैं. मोस्ट कॉमन कंजंक्शन जो हम यूज करते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो एंड येट. कैसे यूज होते हैं अभी इसको आगे देखेंगे, बट याद रखिएगा कंजंक्शंस होते क्या है कि वो दे कनेक्ट द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग अ काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन देम. ये कैसे यूज होते हैं? जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है? दे जॉइन अ वर्ड और वर्ड ग्रुप्स दैट आर यूज्ड इन द सेम वे. एग्जाम्पल जैसे होता ना, अभी यहाँ पे देखना, we found a bat and a glove. We were cleaning the house. Okay, there was a process going on wherein we were cleaning the house. साफ सफाई कर रहे थे. Festivities that are around the corner. तो मकान सफाई कर रहे थे, तो we found a bat and a glove. तो यहाँ पर कंजंक्शन and जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन and, it is connecting the two words which is a bat and a glove. ठीक है. They may be hiding in the kitchen or in the basement. जैसे छोटे बच्चे खेलकूद करते हैं, they always play hide and seek and all. तो क्या होता है ना, they may be hiding in the kitchen or in the basement. तो यहाँ पर हमने दो सेगमेंट्स को जोड़ा, किचन और बेसमेंट को. किसके थ्रू? और के थ्रू. They may be hiding in the kitchen or in the basement. यहाँ पर कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, और ये कनेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट फ्रेजेस को टुगेदर. ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फिर आपके पास आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. These type of conjunctions are used in linking two clauses together. This conjunction introduces a dependent clause and they also describe the relationship between the dependent clause and independent clause in a sentence. मतलब दो डिफरेंट सेंटेंस क्लॉजेस को वो डिस्क्राइब कर रहा है, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस भी होते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एग्जांपल को, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज रेनिंग आउटसाइड. दिस सेंटेंस इज कंप्लीट बाय ऑल मीनिंग्स इन इटसेल्फ. ओके, आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला. दिस इज आल्सो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. अभी यहाँ पर अगर मैं जोड़ूं दो सेंटेंसेस को, राइट, जैसा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड सो आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला. अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जब भी डिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज अभी तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अब डिपेंडेंट हो जाएगा. बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला. अब ये डिपेंडेंट हो गया. अभी यहाँ पर
दो सेपरेट सेंटेंसेस को आप ऐसे मीनिंग नहीं बना सकते हैं जब तक कि आप उसमें डिपेंडेंट ना हो बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला। अगर फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे इट इज रेनिंग आउटसाइड इंडिपेंडेंट सेंटेंस, आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सो आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला को ज्वाइनिंग कर दिया तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया। अब यहाँ पर का चेंज का बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड, बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड मतलब कि क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं अम्ब्रेला ले आया, बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला। तो ये कंजंक्शंस आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस को रिलेशनशिप के डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं अम्ब्रेला ले आया, या बारिश हो रही है इसलिए अम्ब्रेला ले आया। तो अलग अलग सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर लेता है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फिर आप क्या आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि सेम आइटम्स ऑफ द सेम काइंड को कनेक्ट करते हैं। दे जनरली वर्क, और ये जनरली एक जोड़ी में काम करते हैं। दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। Correlative conjunctions include the types of correlative conjunction that there are. They include both and, neither, nor, either, or, not only, but also, whether. अभी इनको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। Both dogs and cats make good pets. अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर दो नाउन्स आपके पास आ गए, एक तो आपका डॉग हो गया और फिर दूसरा आपका कैट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बता, जैसे मैंने बोला कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, एक्टिंग, दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर। बोथ डॉग एंड कैट्स मेक गुड पेट्स, मतलब कि कैट एंड डॉग दोनों ही एक अच्छा पेट्स साबित हैं। बोथ डॉग्स एंड कैट्स। यस, या फिर हम जब खाने की बात करते हैं एग्जाम्पल की, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेगा कि आई विल हैव बोथ ब्रेड एंड बिस्किट विथ टी। आई विल हैव बोथ ब्रेड एंड बिस्किट विथ टी, मतलब कि मैं ब्रेड और बिस्किट दोनों साथ में लूंगा चाय के। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। You should set flowers not only on the table but also in the basket. तो यहाँ पे दो फ्रेजेस आपके यूज हो रहे हैं। कैसे? Not only on the table but also in the basket. तो यहाँ पर आपके दो फ्रेजेस देखिए सिंपल यूज हो रहे हैं, तो वो कोरिलेशन में आ रहे हैं ना। कॉमन चीज यहाँ पे क्या है? फ्लावर्स। You should set flowers. आपको फ्लावर्स सेट करने हैं, टेबल ही नहीं बल्कि बास्केट में भी। इसको इस तरीके से बोला जाए, अगर हिंदी में हम बोलेंगे इसको, यू शुड सेट फ्लावर्स नॉट ओनली ऑन द टेबल बट आल्सो इन द बास्केट, मतलब कि आप फ्लावर्स को सिर्फ टेबल ही नहीं बल्कि बास्केट में भी रखना। इसका मतलब इस तरीके से हुआ है। कोरिलेटिव कंजंक्शन आपका क्या कर रहा है, दो डिफरेंट फ्रेजेस को एक साथ रिलेट कर रहा है, तो रिलेटेबल है। तो यहाँ पर रिलेटेबल क्या है? फ्लावर्स, जो कि रिलेटेबल है। अब यहाँ पर आइदर बोरो अ बुक और बाय मैगजीन, आइदर बोरो अ बुक और बाय मैगजीन, तो यहाँ पे क्या दो अलग अलग डिफरेंट आइडियाज के बारे में बात हो रही है, यानी या तो बुक या तो मैगजीन, यानी कि ऑप्शन के साथ दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉमन चीज क्या आ रही है? कोरिलेट यहाँ पे क्या हो रहा है? बुक और मैगजीन को कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के हैं। बुक और मैगजीन अगर हम बात करें तो मोरलेस सेम होते हैं। मैगजीन तो हम किसी चीज को बोल सकते हैं, मैगजीन तो जैसे ये भी एक मैगजीन होगी, जैसे ये एक टाइप की मैगजीन होगी, ठीक है ना, ये एक मैगजीन होगी। उसी तरीके से बुक, ये एक बुक हो गई, ठीक है ना, ये एक बुक हो गई। तो या तो बुक या फिर मैगजीन, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट और आइडियाज को भी कोरिलेट करें, क्योंकि सेम टाइप के रिटन मैटर, रिटन टेक्स्ट वाले हैं। तो आइदर बोरो बुक, या एक बुक ले लो या फिर एक मैगजीन खरीद लो। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए आपके। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ इक्वली इंपॉर्टेंट, इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन भी आपके लिए क्या करता है ना, बेसिकली
आपके वर्ड्स जो है, जो आप लिखते हो या बोलते हैं, वॉट एवर दैट यू से, राइट और स्पीक, टू एड अ स्ट्रॉन्ग इमोशन इनटू इट, एक एक्सप्रेशन उसमें डालते हैं, एक शॉर्ट एक्सक्लेमेशन जैसा होता है, वो होता है इंटरजेक्शंस। जनरली दे आर, वो किसी भी ग्रामेटिकली रिलेटेड तो नहीं होते किसी पर्टिकुलर पार्ट को, एक इनफॉर्मल एकेडमिक यूसेज में आते हैं, बट दे मोस्ट ऑफन शो इमोशन और एक्साइटमेंट। ठीक है ना, जैसे कि ओ वाओ, ये दैट इज ग्रेट, हैव अ ग्रेट डे, है ना, इस तरीके से इंटरजेक्शन यूज करते हैं। ये कैसे यूज होते हैं इनको देखिएगा। जैसे कॉमन इंटरजेक्शंस क्या है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर जैसे कि अगर चोट लगी तो आउट, या फिर आप किसी को बोला वॉच आउट, मतलब देखो संभाल के देखो, देखो बच के बच के बच के, तो क्या बोलते हैं, वॉच आउट। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी अनटूवर्ड हैपनिंग होती है, तो व्हाट डू वी से, ओ नो। जैसे आप कोई चीज भूल गए, आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम किसी ने बोला था, तो आप भूल गए उसको। जब आपसे बोला गया कि वो आपने वो वाला काम, मैंने आपको एक काम दिया था, एक प्रोजेक्ट दिया था मैंने आपको, वो आपने कर लिया, तो फिर आपके, और अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप ओ नो आई फॉरगॉट टू डू इट, अरे मैं भूल गया, या मैं भूल गई। तो ये होते हैं कॉमन इंटरजेक्शंस। ये बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में करते क्या है, हाउ कैन इंटरजेक्शंस एक्चुअली हेल्प यू इन योर इंग्लिश ग्रामर, या फिर ये क्या है, ये आपके आइडियाज को बहुत एक्सप्रेस क्लियरली करने में हेल्प करते हैं, आपके राइटिंग को मोर एक्साइटिंग या फन टू रीड, क्योंकि उसमें आप जब ऐड करते हैं ना एक्सक्लेमेशंस, interjections are basically short exclamations of expression that we use. It's wonderful, है ना, जिससे बोलते हैं wonderful, it's amazing, it's fantastic, out, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस आप जब यूज करते हैं तो वहां पर उसको वेट पड़ता है, वैल्यू पुट अप होती है वहां पर, और लगता है कि आप मच मोर इन कमांड है अपने उसमें, आपकी राइटिंग पे, आपकी ग्रामर पे काफी अच्छा कंट्रोल है, तभी आप ये यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारा सेशन पूरा अबाउट प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन पे है, कंप्लीट हो गया है। और इसके थ्रू हमारा पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन है, which consisted of 8 parts of speeches that was covered, that included nouns, included pronouns, included adjectives, words, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. So all 8 parts speeches are covered on the date as of now. Next session that happens on Tuesday next will be on revising all these 8 parts of speeches. So my sincere request to all of you who have joined in today in good numbers is that please go back to the module, do the exercises, do the practices, so that you are not left behind when we move to the next topic, which will be on tenses. Because जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा आपके चीजों का, by not covering or not doing the exercise, वो पाइल अप जब होता जाएगा ना, तो प्रॉब्लम इवेंचुअली आपको small daily efforts make for big results. So it's very necessary, it's very essential that you always keep doing some small efforts, okay? They add up to this, sum up to big results. हाँ, कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, there are quite a few number of people who are asking for parts of speech recording. We will send to you. Please kindly send in your personal email IDs wherein we will send you all. ठीक है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपको सबको मेल पे फॉरवर्ड करी भी जा रही हैं, और अभी यहाँ पर सेशन कंप्लीट हो ही गया है, तो हम आपको अभी इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस होंगी
वो भी सेंड करेंगे आपको, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम पे आपको उसको एक्सरसाइज करके वापस भी करना होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप सबके लिए एक अपना ईमेल डाल दे रहा हूँ, यू कैन जस्ट सेंड मी योर क्वेरीज एंड रिस्पॉन्सेज। I have sent in my email address to all of you. You can send your responses and queries in that particular email, and we'll be sending you the recorded sessions for all the parts of speeches that we have done or we have covered, and we will be revising the parts of speeches in our next session that will be happening on the next Tuesday. The date is 6th. On 6th of October, same time, we will be revising the parts of speeches before we move ahead with our next section, which is on tenses. What are tenses, which we will not be discussing as on moment, but we will cover the tenses once we have done revising with the parts of speeches that we have done so far. Okay, then thank you so much, all of you who have shown in good interest, good energy for during the session, and looking forward to see you again on next Tuesday, that is 6th of October, and we will be revising the parts of speeches on that day. All right, then, thank you, good day, and take care.